So hello there guys, how you all are doing? Probably you all will be doing fine. So welcome back to Rejoin Tech. Again we are back with a placement preparation video and this time we are dealing on with how to prepare for placements. इस वीडियो में वी आर एज्यूमिंग दैट यू गाइज हैव 3 और मोर मंथ बिकॉज द कंटेंट आई एम गोइंग टू गिव यू विल रिक्वायर एटलीस्ट 3 मंथ ऑफ टाइम सो दैट आप प्लेसमेंट्स के लिए सही से प्रिपेयर कर सके. इन फ्यूचर विल बी मेकिंग अ वीडियो जिसमें कि विल अज्यूम द टाइम टू बी 1 मंथ एंड आई विल गिव यू कंसाइज नोट्स एंड ऑल सो दैट कि आप 1 महीने में प्रिपरेशन कर सकें. वी हैव दीज ऑल टॉपिक्स फॉर कंसिडरेशन. विल गो थ्रू ऑल द वे फ्रॉम DSA टू DBMS टू कंप्यूटर नेटवर्किंग्स टू ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एट लास्ट we'll have a little bit of session on how to improve your soft skills as well. Moreover, wait. Just remain in this video. In last of this video, we have a bonus content on a very basic problem that everyone has of revision. That you are going on making advanced topics like trees, graphs and all, but you are forgetting the things that you made earlier like linked list, hash maps and all. So इस वीडियो में I'll tell you how you can revise efficiently so that आप आगे बढ़ते जाओ एंड पीछे वाली बातें भी आपको याद रहें, इंटरव्यू में सब कुछ आपके टंग टिप पे रहे. सो कूल, विदाउट फर्दर अडू मैंने पूरी स्क्रिप्ट लिख ली है. सो प्लीज़ just for my motivation keep supporting the channel and like it up. So let's continue the video. Coming to the most important topic of all in placement preparation. You understood it right. It's DSA. I mean, सबको डर लगता है DSA से, मुझे भी लगता था. But if you have special tactics and plan in mind, then you can easily crack it out. We are going to divide this section in 3 major parts. That is, first is what are the ways you can prepare. I mean, in how many ways you can target preparation of your DSA. The second most important stuff that we will be covering is what topics you need to prepare. I mean, बहुत सारे topics है, but कौन सी पढ़नी है, किसमें questions लगानी है, that will be our second stuff. And the third and last one will be कि कहाँ पे code solve करने हैं. I mean, there are a lot of platforms, a lot of stuff to select from, but we will target some little handful amount of platforms जहाँ पे कि आप सही से practice कर सको. So there are basically 3 ways you can prepare anything in life. First one out of is to get the theoretical knowledge. We will divide the people in 3 kinds. So the first kind of people, they'll just get the theoretical knowledge and just learn up the stuffs, get to know about the abouts and what is the theory. For example, अगर कोई question in arrays, they will just know all the things about array क्या होता है, ये question का approach क्या है, theoretical way में उसे समझ लेंगे, but they won't apply it. If you are going with only study, then I'll recommend you GFG because it is one of the most liked stuff that I used to solve in my placement preparation. And basically they have courses for a little less price in comparison to other market giants like Coding Ninjas and all. And trust me, इनकी courses अच्छी होती हैं. I have personally tried them and I have got a lot of benefits. So I mean, you can go with GFG. If not, अगर आपको फ्री में देखना है कि how much मैं समझ पा रहा हूँ, कितना ग्रास कर पा रहा हूँ, how much I am able to solve and all, then YouTube is the best platform for you guys. यहाँ पे बहुत सारे भैयाज एंड दीदीज ने वीडियोस बना के रखे ऑलरेडी like Code with Harry, Love Babbar and all. So we can take the advantage of that and there are, I mean, these are all valuable stuffs that I have even seen. I mean, मैंने YouTube से उतना solve नहीं करा है, but if you want to understand some particular topics, सौरभ वर्मा DP के लिए बहुत famous है, ऐसे करके मतलब you can pursue it. Now we'll talk about third kind of people जिनके पास they don't have that much amount of time, they just need to solve 50 questions and just go out of the box and I mean sit in the coding contest and all. मतलब अगर 50 में से 2 लग गए तो that is fine. सो उनके लिए वी हैव अ लॉट ऑफ DSA शीट ऑन यूट्यूब. किसी का भी कर सकते हैं, स्ट्राइवर है, लव बब्बर है, फ्राज है, सारे की शीट्स हैं. आप उनमें से उठा के 100-200 क्वेश्चंस लगा लो, प्रोबेबली उनमें से ही आ जाएंगे. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टफ्स, नॉट जस्ट कि बनाए जा रहे हैं, वैसे नहीं करना है. कोशिश करना है कि 2 ही बना रहे हैं हर दिन बट समझ के बना रहे हैं, सो डैट अगर वो क्वेश्चन इंटरव्यू में आ जाए तो अपन से लग जाए. नहीं तो फिर क्या होगा कि अगर एक दिन में 10 बना रहे हैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा, तो फिर अगर वही सेम क्वेश्चन इंटरव्यू में आ भी जाएगा देन यू वोंट बी एबल टू स्पॉट इट. यू विल बी जस्ट थिंकिंग कि शिट आई डिडंट सॉल्व इट व्हेन यू ऑलरेडी डिड, राइट? वी आर स्टिल लेफ्ट विद सेकंड काइंड ऑफ पीपल एंड दोज आर माय फेवरेट. द पीपल जो कि पहले पूरी की पूरी नॉलेज ले लेते हैं, दे नो अबाउट द टॉपिक्स, दे लर्न अबाउट इट फर्स्ट, देन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस.
तो इसमें क्या होता है कि यू गेट द नॉलेज अबाउट द टॉपिक एज वेल एज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जिससे कि आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन एज वेल एज ऑनलाइन असेसमेंट की प्रिपरेशन हो जाती है. एंड फॉर दीज काइंड ऑफ पीपल आई विल सजेस्ट गोइंग थ्रू दिस DSA बूट कैम्प का कोर्स फ्रॉम GFG. ट्रस्ट मी, दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाई GFG, बट मैं इतना GFG इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैंने भी इसी से पढ़ा था. तो इस कोर्स में क्या फ़ायदा है कि यू विल बी गोइंग फ्रॉम ईजी टू एडवांस, एरे से लेके डीपी ग्रीडी सब पढ़ाते हैं इसमें. एंड सेट ऑफ क्वेश्चंस भी रहते हैं यहाँ पे. आई मीन आप पहले वीडियोस देख लो, देन यू हैव सेट ऑफ 5 प्रॉब्लम्स जो कि आप बना लोगे. एंड इससे क्या होता है कि आपकी कोर्स वाली चीज़ तो चली रही है, साथ ही साथ में यू आर लर्निंग द प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट्स एज वेल. ये तो हो गया कि हाउ टू प्रिपेयर, आई मीन कैसे कैसे पढ़ाई करें. नाउ द स्टफ इज कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, बिकॉज अगर आप DSA की प्रिपरेशन देख रहे हो एंड वी आर एज्यूमिंग यू हैव 3 months ऑफ टाइम, देन DSA इज अ लॉट वास्ट सी जिसमें आपको डुबकी नहीं लगानी है. वाई? बिकॉज देर आर सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें से ही क्वेश्चंस आते हैं. रैदर दैन लर्निंग द होल DSA, आप ये कुछ ईजी मीडियम हार्ड डिवाइड करके पढ़ लोगे, यू विल बी गुड टू गो. सो सबसे पहले आते हैं हमारे ईजी सेट्स ऑफ टॉपिक, जिन्हें कि हम सबसे पहले बनाना स्टार्ट करेंगे. वाई? बिकॉज इट विल बूस्ट आर कॉन्फिडेंस. सो द टॉपिक्स आर एज यू वुड हैव थॉट ऑलरेडी: एरेज, स्ट्रिंग्स, सर्चिंग, सॉर्टिंग, स्टैक एंड क्यूज. ये सारे हैं जिन्हें कि हम सबसे पहले बनाना स्टार्ट करेंगे. अगेन मीडियम में आते हैं हमारे हैशिंग, हीप, लिंक लिस्ट. लिंक लिस्ट को वी कुड हैव पुट इन ईजी एज वेल, बट मैंने मीडियम में रखा है बिकॉज लिंक लिस्ट से कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे बन के आते हैं जो कि मैक्सिमम इंटरव्यूज में पूछते हैं. दे आर काइंड ऑफ स्टार्टर क्वेश्चंस. इंटरव्यूअर विल स्टार्ट योर इंटरव्यू विथ लिंक लिस्ट टू जस्ट जज की वेदर यू नो एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग टू आस्क यू और नॉट. अगर आता ही नहीं तो फिर दे वोंट कंटिन्यू द इंटरव्यू. सो लिंक लिस्ट के कुछ क्वेश्चंस है विच प्रोबब्ली आई विल टेल इन द नेक्स्ट वीडियो, जो कि अगर आप बनाते हो तो मैक्सिमम क्वेश्चंस उसी में से लग जाए. एंड इन लास्ट कम्स आर एडवांस सेट ऑफ टॉपिक्स. मैंने डिफिकल्ट नहीं बोला है, मैंने एडवांस्ड बोला है. And trust me, this is the set of topics that is kind of horror dream for every student of our age. So start करते हैं. हमारी एक tree, then there is graph, then DP आता है, and last में आता है हमारा greedy backtracking and some weirdo algorithms. I mean ये थी हमारी सारी टॉपिक्स. नाउ पढ़ना कहाँ से है? तो ये सारी टॉपिक्स वी विल स्टडी फ्रॉम GFG वाली कोर्स इटसेल्फ, या यूट्यूब की फ्री रिसोर्सेज से भी पढ़ सकते हैं. बट आई हैव वन स्पेशल रिकमेंडेशन डायनामिक प्रोग्रामिंग के लिए. एक बार ये वाली प्लेलिस्ट को देखना जरूर. सौरभ वर्मा की, ही इज सो फेमस अबाउट DP एंड ट्रस्ट मी, ये बंदे ने बहुत अच्छे से वीडियो बनाया है. बेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्लेलिस्ट इज दैट कि यहाँ पे सारे क्वेश्चंस कवर्ड हैं. अगर आपने ये 50 क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट बना ली ना, तो देयर वोंट बी एनी इवन अ सिंगल क्वेश्चन लेफ्ट जो कि इनसे बाहर में आएगा. तो दिस इज काइंड ऑफ अ कंप्लीट कोर्स फॉर डायनामिक प्रोग्रामिंग. आई विल स्पेशली रिकमेंड दिस वन. ये सारी बातें तो हो गई ब्रो कि कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टफ कम्स वेयर टू सॉल्व, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म है. लीड कोड हो गया, कोड शेफ हो गया, कोड फोर्सेस हो गया, प्लेटफॉर्म ही प्लेटफॉर्म, बट बनाए कहाँ? आई मीन विच विल बी द बेस्ट प्लेस टू चैलेंज आवर सेल्फ, काइंड ऑफ गेम अरीना टाइप, जहाँ पे कि जाके आप अपनी स्किल्स टेस्ट आउट कर सको. फर्स्ट रिकमेंडेशन एज ऑलवेज, लीड कोड. मतलब भाई क्या चीज़ है ये, मतलब मैं क्या बताऊं. थोड़ा भावनाओं में बह गया था, बट कुल. लीड कोड इज बेस्ट स्टफ बिकॉज आप यहाँ पे प्रॉब्लम्स को डिफिकल्टी वाइज, स्टेटस वाइज, टैग वाइज, लिस्ट वाइज, हर वाइज में शॉर्ट कर सकते हो. यू विल गेट योर क्वेश्चन, यहाँ पे टाइप कर दो, बस यहाँ पे आप लिख दो एरे, यू विल गेट लाइक 500 क्वेश्चंस ऑन एरे. बैठ के बनाते जाओ, एक तरफ से इजी, मीडियम, हार्ड, एक शीट फॉलो कर लो जो भी करनी है. बस ट्राई टू सॉल्व इट फर्स्ट योर सेल्फ. उसके बाद फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस विल बी गोइंग ऑन, लगते जाएंगे, बनते जाएंगे, एंड you will be good to go. And best thing about solving in LeetCode is कि they have regular contests, and as well you can write them in your resume that you have this ranking in India, as well as for example you solved like around 300 questions on LeetCode, so you can include that also with your profile का link कि I have solved this many questions in LeetCode. That will add kind of a spotlight to your resume. एक और रिकमेंडेशन है, जो GFG वाली कोर्स थी DSA बूट कैंप वाली, उसमें भी एक सेक्शन है प्रॉब्लम्स का. तो फॉर एग्जांपल आपने हैशिंग सॉल्व करा है, उसकी प्रॉब्लम्स वाले पार्ट में चले जाओ. वो सारे 5-6 क्वेश्चंस जो बताए गए थे वीडियो में, वो सारे यहाँ पे एज अ प्लेग्राउंड आप टेस्ट कर सकते हो कि आप बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो. आई मीन दैट इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग स्टफ, बिकॉज इसमें आपको कुछ ज़्यादा सर्चिंग ये वो नहीं करना है. जहाँ पे आपने पढ़ा है वहीं पे सामने में वर्कबुक है, वहाँ पे बैठ के बस क्वेश्चन बना लो. आई विल क्रिएट अ PDF, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे सारे
लिंक्स मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा, आप बस उसे डाउनलोड कर लेना, यू विल गेट ऑल द थिंग। अब आगे बढ़ते हैं फॉर आर DBMS। सो दिस इज अगेन द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टफ जो कि DSA के बाद लोग पूछ ही लेते हैं। अगर आपसे नहीं पूछा गया है देन यू आर लकी एनफ, मुझसे पूछा गया था एंड इट वाज हेक्टिक। कमिंग टू DBMS, विल फॉलो 3 steps एज यूजुअल। फर्स्ट इज स्टडी, देन प्रैक्टिस, देन रिवाइज, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो स्टडी के लिए मैंने ये वाली यूट्यूब वीडियो देखी थी, आई मीन मुझे अभी भी याद है बिकॉज दिस गाई टॉट सो वेल कि मतलब 4 घंटे के बाद आई वॉज एबल टू राइट द क्वेरीज एंड ऑल। बट हाँ, ये मैंने 3rd ईयर में किया था तो आई स्टिल हैड टाइम। स्टडी वाली बातें हो गई, नाउ विल कम टू प्रैक्टिस। एंड प्रैक्टिस में HackerRank इज नो डाउट बेस्ट प्लेटफॉर्म टू प्रैक्टिस फॉर SQL स्टफ। मैंने भी इसी से किया था एंड मोर ओवर मेरे टाइम पे डार्क मोड भी नहीं था। नाउ दे हैव अ डार्क मोड दैट इज साइक। वी हैव दिस होल लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, एक तरफ से बनाना स्टार्ट करना है। वी गो फ्रॉम बेसिक्स देन इंटरमीडिएट एडवांस, ऐसे करते करते एंड दे हैव लाइक काइंड ऑफ वेरी ग्रेट UI। मतलब यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, इंटर द क्वेरी, यहीं पे आपको दिख जाएगी आउटपुट, यू आर गुड टू गो और आई मीन यू आर रॉन्ग। आउटपुट वो भी आ जाता है, STD एरर वाली भी आउटपुट आ जाती है कि यू गॉट रॉन्ग हेयर, टेबल का नाम गलत है, ये गलत है, वो गलत है। तो दैट इज़ काइंड ऑफ अ वेरी बेस्ट प्लेग्राउंड जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी SQL स्किल्स। लास्टली अगर आपके पास थोड़ा और टाइम है देन यू कैन प्रोबब्ली क्रिएट अ प्रोजेक्ट इन SQL। कोई भी सिंपल सा रेस्टोरेंट मैनेजमेंट, लाइब्रेरी मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस में तो होते भी हैं DBMS के प्रोजेक्ट। एक तो बनानी पड़ती है, मैंने भी बनाया था, शायद रेस्टोरेंट मैनेजमेंट था। तो ये कर सकते हैं, इससे क्या होगा कि आपकी स्किल्स जो है वो यूज़ में आ जाएगी। नाउ वी हैव कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इन आवर लिस्ट। तो उसमें जाते हैं, देखते हैं कि उसमें अपन कहाँ से पढ़ सकते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट कंप्यूटर नेटवर्किंग्स तो द बेस्ट चैनल दैट आई गॉट ऑन यूट्यूब वॉज गेट स्मैशर्स। आई मीन इनके कोर्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है। दे टीच यू इन अ वे, एग्जाम्पल्स वगैरह दे के कि इट विल बी ईजी टू अंडरस्टैंड। आई मीन दे आर जस्ट गुड एनफ टू मेक यू अंडरस्टैंड टू द लेवल कि आप इंटरव्यू में जवाब दे सको। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी सेम अपन फॉलो करेंगे। पढ़ने के लिए वी विल गो विद गेट स्मैशर्स, उनकी कोर्स बहुत ही अच्छी है, स्ट्रक्चर्ड है अगेन। एंड फॉर इंटरव्यू के पहले रिवीजन करने के लिए विल कम टू इंटरव्यू बिट। 100 क्वेश्चंस या मोस्ट रैली 120 क्वेश्चंस रहते हैं। यू जस्ट गो थ्रू ईच वन ऑफ देम, थोड़ी थोड़ी पढ़ के समझ के एंड यू विल बी गुड टू गो। आई मीन मैं यही करता था, इंटरव्यू के एक रात पहले मैं रात भर बैठ के इंटरव्यू बिट वाली एक चीज़ एक बार अच्छे से खंगाल लेता था। तो इट वॉज लाइक कि हो जाता था, मतलब क्वेश्चंस मिलते जुलते ही आएंगे उसमें, कुछ बाहर से नहीं आना है बिकॉज दे आर लाइक ऑल द टॉपिक्स दे हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इन द सिलेबस, तो उधर से ही आते हैं। लास्ट में थोड़ी सी सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो देर आर मेनी फ्रेंड्स ऑफ माइंड दोज हु आर लाइक काइंड ऑफ ग्रेट कोडर्स बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस व्हाट दे आर थिंकिंग और व्हाट इज द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड ड्यू टू डैट दे आर नॉट गेटिंग आई मीन दैट मच अपॉर्चुनिटी जितना वो डिजर्व करते हैं। So for this we can have a little bit of improvement. I mean there will be more number of people watching currently this video जिनके पास की ये same problem होगी। You know the stuff, you know the answer but you are not able to express it. So what we can do for that is आपने कोई सा भी question solve किया, just solved a simple two sum problem in array. Just do one thing, every laptop has got a webcam right now. So you just open your webcam and explain that question in your own words to yourself. तो क्या होगा कि धीरे धीरे करते करते यू विल गेट एनफ नंबर ऑफ वर्ड्स जिससे कि आप ये चीज़ों को किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हो। एंड वंस यू आर डन विथ मेकिंग द वीडियो जस्ट रीप्ले द वीडियो टू योरसेल्फ 5 to 6 times एंड सी कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, कहाँ पे आपसे गलतियाँ हो रही है, कहाँ पे आपका जो वर्ड्स है वो शैटर कर जा रहा है, वेयर यू आर नॉट एबल टू प्रोवाइड द मीनिंग ऑफ वॉट यू आर सेइंग। ये वाली चीज़ें देख के यू विल बी ग्रेजुअली इम्प्रूविंग एंड ट्रस्ट मी जब 15-20 दिन आपने ये कर लिया है ना तो यू विल बी ईजिली एबल टू आई मीन एक्सप्लेन द स्टफ्स टू इंटरव्यूअर, वो काफ़ी ईजी हो जाता है। सो वी आर नियरली एट द एंड ऑफ द वीडियो एंड दिस इज़ द पार्ट वेयर आई विल बी टेलिंग यू हाउ यू कैन रिवाइज योर DSA या कैसे आप उन्हें पढ़ें सो दैट कि व्हेन यू आर गोइंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ DSA लाइक मीडियम एडवांस तक जा रहे हैं तो यू डोंट फॉरगेट द ईजी वाला पार्ट। बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, अ लॉट ऑफ जूनियर्स जिनका कि पहला क्वेश्चन ये होता है मैं पढ़ तो रहा हूँ, जा रहा हूँ, आई मीन अभी मैं लिंक लिस्ट तक पहुँचा हूँ बट मुझे एरेज याद नहीं है वहाँ पे क्या हो रहा था, कौन कौन से सवाल थे, कैसे लगाने थे। सो इन दिस पार्ट विल बी टॉकिंग हाउ यू कैन रिटेन योर DSA का मेमोरी, हाउ यू कैन रिवाइज इट सो एफिशिएंटली कि वेन एवर यू गो फॉर इंटरव्यूज़ आपसे वो एरे का सवाल पूछे या ट्रीज का सवाल पूछे, BST का पूछे, कहीं का भी पूछे, यू विल बी आंसरिंग देम लाइक इट वॉज ऑन योर टंग टिप। सो वी हैव अ सेट ऑफ रूल्स जिन्हें कि हम स्ट्रैटेजिकली फॉलो करेंगे।
पहला आता है वी विल मेक अ प्रॉपर नोट्स ऑफ डीएसए। सो बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे लोगों का ये कॉन्ट्राडिक्टिंग फैक्ट होता है कि डीएसए की नोट्स नहीं बनाते हैं, रटते नहीं है डीएसए को। आई एम नॉट टेलिंग यू कि डीएसए को रटो, बट यू शुड मेक अ नोट्स जैसे मैंने बनाया है। इट्स लाइक काइंड ऑफ कि वट एवर वीडियो यू आर वॉचिंग राइट नाउ, आपने जो भी स्टेप्स देखा उसमें कि हाँ ये बंदा पहले उसे सॉर्ट कर रहा है, देन दे आर फाइंडिंग द मिडिल एलिमेंट, ऐसे करके यू राइट दैट स्टफ्स इन योर ओन वर्ड्स। 5-6 लाइन में पूरी वीडियो को डिस्क्राइब कर दो कि दी स्टफ्स आर टेकिंग प्लेस, ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही थी वहाँ पे, एंड एट लास्ट में आप कोड लिख दो वहाँ पे। इससे क्या होगा कि जब भी आप रिवाइज करने आओगे जस्ट बिफोर इंटरव्यू, सो यू कैन नॉट गो थ्रू होल कोड राइट, क्योंकि उतना वक्त नहीं होता। कल इंटरव्यू है, हाउ कैन यू गो विद द होल कोड? सो रैदर देन गोइंग विद द होल कोड, आप बस वो 4 लाइन पढ़ोगे हर एक क्वेश्चन की, एंड आपको याद आ जाएगा, यू विल रिटेन इट कि ओ अच्छा हाँ करेक्ट, ये मिडिल में जा रहा था, फिर ये ऐसे कर रहा था। तो दैट विल बी प्रॉपरली बेनिफिशियल फॉर यू। मतलब मैंने यही फॉलो किया था, एक दिन में ट्रस्ट मी पूरी की पूरी डीएसए रिवाइज हो जाएगी। सेकेंड चीज जो हम फॉलो करेंगे इज दैट वट एवर कोड एडिटर वी आर यूजिंग, वट एवर वी आर यूजिंग टू सॉल्व आवर डीएसए के प्रॉब्लम्स वन बाई वन, वी विल क्रिएट अ डायरेक्टरी स्टफ देयर। आई मीन मैं, यू कैन सी ऑन माई लेफ्ट देयर इज लाइक एरे, बाइनरी सर्च ट्री। हमने जितनी भी टॉपिक्स बनाई है ना, विल मेक डायरेक्टरी फॉर ईच एंड एवरी, एंड सारे में फिर अपन वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लिंक लिस्ट में वी हैव डबली लिंक लिस्ट, सिंगली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट एंड ऑल, तो वो सबकी सब डायरेक्टरीज भी क्रिएट करेंगे। इससे क्या होगा कि रिवीजन करने में बहुत ही ईजी होगा। आप बस, आपको अगर कोड बेस भी देखना है, यू विल जस्ट कम टू दैट फोल्डर, गेट टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, गो एंड सी द कोड। थर्ड में आता है कि डोंट स्किप ओ ऑफ एन स्क्वायर, दैट इज द थंब रूल। आई मीन कि सब लोग एफिशिएंट वाले पार्ट में डायरेक्टली चले जाते हैं, वो नहीं करना है। पहले आप ओ ऑफ एन स्क्वायर बनाओ, ओ ऑफ एन बनाओ, फिर ओ ऑफ लॉग एन तक जाओ। आई मीन जो भी एफिशिएंट है आप धीरे धीरे करके वहाँ तक पहुँचो, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली एफिशिएंट बनाओगे तो उनमें कुछ वैसे स्टेप्स होते हैं जो कि आपको स्टार्टिंग में समझ में नहीं आएगी, तो दैट विल बी कि आप रट रहे हो डीएसए को। बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू स्टफ दे विल आस्क यू पहले वर्स्ट केस, देन उसे बोलेंगे कि आप अब इसे एफिशिएंट करो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी घटाओ, वट and mostly these are all interview tips. I'll be making a separate video on it, so don't forget to like and subscribe the channel, which will help you a lot. फोर्थ कम्स कि अगर आपने ऑलरेडी कहीं से एक क्वेश्चन बना के रखा है, फॉर एग्जांपल आप लीड कोड फॉलो करते हो एंड आपने डे बाय डे लगाते गए एंड आपने लाइक नियरली सारी क्वेश्चन सॉल्व कर दी जो भी एचडी शीट वगैरह में थी, तो फिर रिवाइज करनी है तो यू विल अगेन कम बैक टू लीड कोड एंड वहाँ पे देखोगे तो ऑलरेडी आंसर लिखी रहती है जो आपने पहले लिखा है। तो व्हाट वी शुड डू इन दैट केस? सो उस केस में क्या करना कि आप अपनी प्लेटफॉर्म चेंज करना है, जस्ट चेंज द प्लेटफॉर्म, गो टू लाइक फॉर एग्जांपल जीएफजी। यहाँ पे आप देख सकते हो देयर इज दिस प्रॉब्लम कॉइन चेंज, दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ डीपी। सो यू कैन गो टू जीएफजी एंड इजिली सर्च द सेम क्वेश्चन, सेम सब कुछ रहता है, बस आपको लाइक कि उस प्लेटफॉर्म का जो कोड है वो आप यहाँ पे लिख दो, तो दैट विल हेल्प यू इन रिवाइज द सेम स्टफ एंड प्रॉब्ली आपको सही से आंसर भी मिल जाएगा कि आप सही बना रहे हो कि नहीं। ये सारी हो गई लाइक फॉर लॉन्ग टाइम रिवीजन। अगर आपको शॉर्ट टाइम रिवीजन करना है जस्ट इंटरव्यू से 1-2 दिन पहले, तो इंटरव्यू बिट इज़ द फर्स्ट एंड लास्ट रिकमेंडेशन। वहाँ पे सब कुछ सही से दिए रहते हैं। आप यहाँ पे रिसोर्सेज में जाओगे, इंटरव्यू गाइड्स में जाओगे, तो यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक्स मिल जाती है। जिस पे भी इंटरव्यू की आपको प्रिपरेशन करनी हो, जस्ट गो देयर, रीड लाइक 50-100 क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चन आएंगे आई गारंटी दे विल आस्क फ्रॉम दैट सेम टॉपिक्स इटसेल्फ। इट्स काइंड ऑफ अ ब्रह्मास्त्र, यू नो। लास्ट एंड आई डोंट रिमेंबर 4th या 5th पॉइंट, देयर इज द 3 इडियट्स वाला डायलॉग राइट, कि काबिल बनने के लिए पढ़ो, मार्क्स के लिए मत पढ़ो। सो दैट इज द सेम आइडियल आई वांट टू गिव यू। बहुत ही अच्छा डायलॉग है वो। जस्ट डोंट स्टडी, डोंट मेक क्वेश्चंस नहीं लगाने एचडी सीट कंप्लीट करने के लिए या फॉर एग्जांपल एक्स कंपनी में जाने के लिए, नहीं वैसी नहीं है। जस्ट स्टडी टू अंडरस्टैंड द स्टफ, इंटरेस्ट डाल लो उसमें। सो गाइस, ज्ञान की बातें तो सारी कंप्लीट हो गई। मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि कैसे करना है, कहाँ से करना है, कब तक करना है। अब थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं उन चीज़ों पे जिनके बारे में कोई बताता नहीं है एंड जो सबके साथ होता है। दैट इज़ नंबर 1 स्ट्रेस एंड सेकेंड इज़ फियर ऑफ नॉट गेटिंग सेलेक्टेड। आई मीन हर किसी के लाइफ में ये फेज़ होता है कि आपको डर लगते रहता है, मेरी होनी है नहीं होनी है, लोगों की सिलेक्शन हो रही है, आई एम नॉट एबल टू क्लियर द रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग राउंड इटसेल्फ, एप्टीट्यूड नहीं निकल रहा। तो उतना ज़्यादा लोड नहीं लेना है, बिकॉज इवेंचुअली इन लाइफ एवरीथिंग विल हैपन, दैट इज़ लाइक प्रूवन एंड रिटन ऑलरेडी। तो उतना सोचना नहीं है, जस्ट गो विद द फ्लो, अपने ऊपर भरोसा रखो, पढ़ाई लिखाई करो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थोड़ा मेंटल रिफ्रेशमेंट पे ध्यान देना। आई मीन दिन भर एक रूम में एक कोने में बैठ के डीएसए नहीं बनाते रहना है, थोड़ा सा बाहर निकलना फ्रेंड्स के साथ। अगर कोई स्पोर्ट्स पसंद है जस्ट गो विद दैट, साइकिलिंग कर लो, थोड़ा मॉर्निंग वॉक ही कर लो, थोड़ा सा रूटीन पे ध्यान देना, मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना एंड बाकी सब सॉर्टेड है डूड। आई मीन होगा,
टाइम लग रहा है, दैट इज़ फाइन. सम अपॉर्चुनिटी इज समवेयर वेटिंग फॉर यू. सो you just have to walk the way to that opportunity and लोड नहीं लेनी, बस खुश रहना है ज़िंदगी में, दैट्स इट. सो गाइज, ऑल द बेस्ट एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू कि ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी. सो जस्ट गो ऑन, स्टार्ट हो जाओ, लग जाओ, प्लेसमेंट फोड़ो एंड दैट्स इट. टेक केयर, सी या.